letters. Business letters, particularly the term business letters, what we are focusing here on the term business letter, because जो हम लोग letters particularly after the classes or after your BBA during your मैम when you'll be running the yes मैम हाँ बोलो लेटर जब हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो मैम सबसे हाँ पहले सेंडर्स एड्रेस होता है ना। हाँ अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना, कोई डाउट हो तो उस समय पूछो, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेस लेटर्स पर्टिकुलरली व्हाट, जैसे लेटर राइटिंग तो हम लोग हमेशा से करते ही आ रहे हैं, है ना, फ्रॉम दी वेरी इनिशियल एज और फ्रॉम वेरी अर्ली एज लेटर राइटिंग जो है वो सिखाया जाता है कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, मे बी टू द टीचर, टू द प्रिंसिपल, किसी तरीके से कैसे लेटर लिखने हैं। बट particularly what we will be focusing in this chapter would be about कि business organizations में if you have to write the letters, what would be the format that a person would have to follow. So basically firstly what we'll be discussing would be the formal letters. Formal letters, basically the purpose of the formal letters is whether it can be for any purpose, like for giving out the information, for sending some information, then to apply for a job, to make a complaint, to give feedback. So for various reasons in business organizations, what the purpose is, you have to inquire for something, you have to inquire for some product that you have ordered, you have to give feedback, you have to file a complaint. Then at the time of applying for a job also, if you are writing a letter known as the cover letter, which we would be discussing later. तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग जो फॉर्मेट यूज करते हैं मोस्टली, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज नोन एज द फॉर्मल लेटर्स. एंड पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस organizations, it is known as the business letters. Now what you were talking about, I am trying to show in the slide itself that in the job format, what we would be discussing would be your query you will get answered. तो अभी आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें वो क्वेरी आंसर हो जाएगी. अब जो बात करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर ओवर हियर, दैट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट business letters or talking about the formal letters, because why we are focusing on the formal letters or in the business letters, because if you are writing in the professional world, you have to be peculiar, you have to know what is the style of writing. Your writing should look more professional and it should be related to your subject matter, or it should be focused on your subject. So if you are, in order to know the ifs and buts, the do's and don'ts that you have to follow, you should be familiar with the style of writing of the formal letter, मैम ताकि वो मेच्योरिटी और एक प्रोफेशनलिज्म दिखाए, और बहुत सारी बातें ना करते हुए आप सिर्फ क्या करें, जो व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट यू वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट. इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि जो सेंडर्स का एड्रेस कहाँ आता है या रिसीवर का एड्रेस कहाँ आता है, कितने so we'll be discussing in the next slide about what you were talking. Now mostly for the formal letters, जो format हम लोग follow करते हैं, mostly it is known as the block style format. Block style format is nothing else but a format mostly in which everything nowadays what is the format is कि सब कुछ जो है वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट मार्जिन की तरफ से ही सब कुछ एक फॉर्मेट which you can see in the PPT slide, कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें जो है क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेपर उसी फॉर्मेट में फॉलो होती हैं. स्टार्टिंग में जो है दैट इज द एड्रेस फॉलोड बाय स्पेस. उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर एक एड्रेस है, फिर थोड़ी सी स्पेसिंग है, फिर जहां पे तुम्हारा जिसको हम लोग आगे बताएंगे, फिर सैल्यूटेशन है या ग्रीटिंग है, उसके बाद द मेन कंटेंट और द बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, और लास्ट में जो क्या है वो फॉलोड बाय द सिग्नेचर एंड फॉलोड बाय द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन. तो जो तुम बात कर रहे थे वो अभी आगे वाली स्लाइड में बेसिकली व्हाट आर द पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर.
बिजनेस लेटर के जो पार्ट है वो क्या है? फर्स्टली इज द हेडिंग. Heading means here, heading with the term heading means where you are the address, जहाँ पे सेंडर का लिख रहे हैं हम, जहाँ पे लेटर हेड है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, और जो रिसीवर का एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल टोटली कंबाइंड एंड मेक दी हेडिंग. हेडिंग में क्या है? हेडिंग कंप्राइजेस ऑफ दी सेंडर का जो एड्रेस है वो. तो जो तुम पूछ रहे थे, फर्स्टली व्हाट वी राइट एट द टॉप ऑफ द पेज, इट इज द सेंडर्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप ऑफ द पेज, व्हिच यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इन द हेडिंग स्लाइड. जो नेक्स्ट स्लाइड अभी जो तुम्हारे पे फोकस हो रही है इस स्लाइड में, यू कैन इजीली सी दैट एट द टॉप ऑफ द पेज इट इज द सेंडर्स एड्रेस. And if it is, अगर जैसे कुछ conditions में क्या होता है, if you are using the printed letterhead of the company, so printed letterhead of the company is already having the address of the company along with the phone number and with the email ID and the name of the contact person. तो वो already वहाँ printed होता है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, in that format what you can do is they can skip the sender's address. तो वो चीज हम skip कर सकते हैं. ठीक है, अगर वहां पे नहीं लिखा, if you are using a plain paper, you are using a A4 size paper to write your letter, the first thing would be your own address. You would write the address followed by which would be followed by your mailing address, and you can also give your phone number and your email address in that. So after this, what you would do after the sender's address, then after the sender's address, in the format itself you can write, you can see कि address के बाद क्या है, उसके बाद जो है वो date भी लिखते हैं. Date is written in order to keep a track of the letter, and the date should be written in full. तो पहले format, इस format में देखो कि after writing the address, a date is written, and in the case where the address is already printed, जहाँ प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड है कंपनी के लेटर हेड पे, उसमें क्या होगा, द डेट वुड बी रिटन एट द लेफ्ट मार्जिन इन फुल. ठीक है, तो पूरी की पूरी डेट जो है वो क्या होगा, थोड़ा स्पेस देने के बाद, जहां पे वो लेटर हेड है, मिडिल ऑफ द पेज, हाँ, जो एड्रेस है उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग देने के बाद, मोस्टली इट इज 3 लाइन स्पेसिंग विच इज गिवन, जो कि इस स्लाइड में दिया हुआ है कि 3 लाइन स्पेसिंग देते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है वो डेट मेंशन करते हैं. और डेट का जो फॉर्मेट होता है, इट इज द फॉर्मेट व्हिच इज, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज बीइंग फॉलोड, कि पहले जो है मंथ आता है, उसके बाद डेट आती है, एंड फॉलोड बाय अ कॉमा, एंड देन द ईयर कम्स. सो इफ द एड्रेस इज देयर, एड्रेस के बाद सेंडर एड्रेस के बाद थोड़ा गैप छोड़ेंगे, उसके बाद डेट. one line gap is there if you are writing in your own writing. अगर आप खुद से लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वहां पे एक लाइन की स्पेसिंग होगी आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस. बट इफ अ कंपनी लेटर यू आर यूजिंग वेयर द name of the company along with the address, it is already printed in the middle of the page. Mostly क्या होता है, middle या side में printed है, तो वहां पे आप कैसे लिखेंगे, since you are now writing or typing it on the letterhead, what you would do is 3 line का spacing, 3 line spacing you will leave, and then you will write the date. तो इस कंडीशन में जहां पे कंपनी लेटरहेड यूज हो रहा है, वहां पे 3 लाइन स्पेसिंग देनी है, उसके बाद डेट मेंशन करनी है. और अगर कंपनी का लेटरहेड नहीं है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस, जस्ट आफ्टर 1 लाइन स्पेसिंग, व्हाट यू कैन गिव, यू कैन राइट द डेट. देन आफ्टर mentioning your own address or the sender's address followed by the date, the second thing that comes in the letter is the inside address known as the receiver's address. जो रिसीवर का एड्रेस है, तो उस सेंडर के एड्रेस के बाद, डेट के बाद हम क्या करते हैं, 4 या 5 लाइन की स्पेसिंग देते हैं. 4 लाइन स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे है कि इनफ, ताकि वो अलग सा दिखाई दे. 4 line spacing means the spacing in between the 2 addresses should be visible, दूर से विजिबल हो जाए, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, बिकॉज यू आर राइटिंग 2 addresses या 2 एड्रेस मेंशन्ड है.
तो उसके नीचे एटलीस्ट 4 लाइन की स्पेसिंग हम देते हैं, और उसके बाद जो इनसाइड एड्रेस होता है, जिस इनसाइड एड्रेस बोलते हैं रिसीवर्स भेजना चाहते हैं, एंड द एड्रेस इज रिटन एंड द सेम एड्रेस इज आल्सो मेंशन्ड ऑन द कवर ऑफ द एनवेलप। जब हम ये लेटर को एक एनवेलप में डाल करके सेंड करते हैं तो सेम चीज एनवेलप पे भी मेंशन होती है, और अगर इन द केस ऑफ एन ईमेल इफ यू आर राइटिंग इट देन यू नीड नॉट टू मेंशन इट ऑन द एनवेलप। यहाँ पे अगर हार्ड कॉपी में कर रहे हैं, हार्ड कॉपी में अगर भेज रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेम एड्रेस वी वुड रिपीट इट ऑन द एनवेलप आल्सो, बट इफ द लेटर इज बीइंग सेंट इन द ईमेल फॉर्मेट or as an attachment in the email, you need not to mention, since no envelope would be required in this case, so you need not to repeat the same address on the envelope. तो इनसाइड एड्रेस का मतलब होता है जो रिसीवर है या जिस कंपनी में आप भेज रहे हैं, जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं, उसका पूरा नाम होगा, उस कंपनी का नेम होगा या पर्सन का नेम होगा, देन फॉलोड बाय द एड्रेस, फॉलोड बाय द सिटी एंड फॉलोड आल्सो बाय द पिन कोड और द जिप कोड। ठीक है, ये समझ में आया? अंकित, योर क्वेश्चन का आंसर मिला कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है, मतलब कि मेरा एड्रेस, सपोज यू आर राइटिंग तो तुम्हारा एड्रेस एकदम ऊपर में आएगा, तुम लिखोगे एड्रेस अपना, और उसके बाद एक लाइन स्पेसिंग छोड़ करके तुम अपनी डेट लिखोगे, और सब कुछ फॉर्मेट किया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर ही लिखना है। उसके बाद तुम क्या करोगे, अपनी डेट लिखोगे, फिर 3-4 लाइन का स्पेसिंग दोगे, और फिर उसके बाद जो रिसीवर है जिसको तुम भेजना चाहते हो उस कंपनी की डिटेल्स होंगी या पर्सन का डिटेल्स होगा, उसके एड्रेस के साथ, उस जो सिटी में वो रहता है या जिस ऑर्गेनाइजेशन का है वहां की डिटेल्स, फॉलोड बाय द पिन कोड। Then comes the next thing, that is the salutation. Salutation is nothing else but हाँ, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है, सब्जेक्ट तुम लिख सकते हो, सब्जेक्ट भी लिखना है इसमें। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द एड्रेस, बिफोर द सैल्यूटेशन what you would write, you would write the subject of the letter which is necessary for the formal letter। तो यहाँ पे क्या है जो कि हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हाँ, before salutation what you would do is you would write the subject of letter। जहां पे आप क्या करना है, in the subject in 1 or 2 lines you would mention about why you are writing this letter or what is your intention after writing this letter। तो एड्रेस लिखा, दोनों एड्रेस लिखने के बाद पहले अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर स्पेसिंग दी, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा, और उसके बाद 2 लाइन की स्पेसिंग दी, और 2 लाइन की स्पेसिंग के बाद सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट वुड बी व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर और व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग दैट लेटर। फिर 2 लाइन की स्पेसिंग, अगेन you have given 2 line spacing, and then you will add the salutation. Salutation is greeting the person by writing either courteous words like dear Mr. or dear sir, या dear sir by madam, respected sir, respected madam। ये सारा क्या है, किसी को ग्रीट करने का तरीका है। Since it is a formal letter, तो इसमें जो मोस्टली यूज किया जाता है for the sake of greeting or for the sake of courtesy, dear is used and respected is used। So dear followed by dear Mr. and the name of the person, or if you are not knowing the name of the person you can also write as dear sir, dear madam। In the case you are not knowing the name, what you can write, it is dear sir, dear madam, and if you know the name then dear Mr. or dear Mrs. you can write। In case if the person is वेरी एल्डरली टू यू, आपसे बहुत ज्यादा एज में है या बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे, बहुत ऊपर वाली पोस्ट पे किसी को लिख रहे हैं, तो you should avoid using the term dear, you should write over here respected sir, respected madam। ठीक है, now after the salutation what comes, the main crux of the letter, that is known as the body of the letter। What I also told when I was telling you about the chapter email, how you have to write the email, the same format is to be followed in the case of the while writing the letter also। In the email format also I told that the body of the email is the main thing where you would discuss about the purpose of that email।
Similarly, in the case of letter, body is nothing else but the paragraph or the content where you are describing everything, जहां पे आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उस लेटर के पर्पस के बारे में. जस्ट आफ्टर 2 लाइन स्पेसिंग बिलो दी सैल्यूटेशन, जहां पे आप डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम ये लिख रहे थे, उसके बाद 2 लाइन स्पेसिंग यू हैव टू गिव. एंड आफ्टर दैट अगेन कुछ, उसके बाद आप क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर, मेन जो डिस्कशन है वो आप अपना स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइटिंग ऑफ योर लेटर. So you can start with the words, with the sentences like this is to make you aware, yeah, this letter is for the purpose of telling you, yeah, this letter is with reference to our previous letters, yeah, this letter is being sent with a motive. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कुछ कुछ लाइंस फ्रेम कर सकते हैं जो कि मोस्टली फॉर्मल लेटर्स में यूज किया जाता है व्हेन यू आर राइटिंग एनी टाइप ऑफ लेटर. तो बॉडी कैसे बिगिन करनी है, इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन सम लेटर प्रीवियसली, अगर कुछ पहले से लेटर्स लिखे हुए हैं और उसके बारे में बताना चाहते हैं किसी को कि पहले भी बहुत सारे लेटर्स उस रेफरेंस में लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बिगिन योर सेंटेंस बाय दैट दिस लेटर इज इन रेफरेंस टू माय प्रीवियस लेटर्स डेटेड. उस डेट को दे सकते हैं और प्रीवियस लेटर्स को आप लिख कर वो डाल सकते हैं. और फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर राइटिंग दिस लेटर इज बीइंग रिटन विद द मोटिव, ऐसे करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो मेन बॉडी जो है, फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी द बिगिनिंग ऑफ द लेटर एंड इन द सेकंड पैराग्राफ यू वुड ट्राई टू डिस्क्राइब अबाउट द पर्पस ऑफ द लेटर. तो पहले क्या है, बिगिन करना है और फिर उसके जस्ट बाद क्या है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं मेन कंटेंट ऑफ द लेटर फॉलोड बाय द कंक्लूजन. ठीक है, फिर आप कंक्लूड करेंगे लेटर को. और ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, इसमें आपको क्या करना है, इन द बॉडी ऑफ द लेटर देयर शुड बी सिंगल स्पेसिंग. हर पैराग्राफ, हर लाइन के बीच में, हर सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में एक सिंगल लाइन की स्पेसिंग होगी, सो दैट इट डजंट लुक टू गॉडी ऑल्सो एंड इट डजंट लुक कि बहुत ज्यादा एक साथ चिपका हुआ भी वर्ड्स न लगे और बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ भी दिखने लगे. तो एक सिंगल लाइन की स्पेसिंग would make the letter look elegant and the person would also be able to see it or read it very properly. तो कुछ भी उसमें वैसा नहीं लगेगा कि हाँ लेटर्स एक दूसरे के ऊपर उस तरीके से दिख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है. So gaudiness in the letter would also not be there and it would be readable also. तो उसके बाद फिर क्या करना है, the next thing would be closing the letter. After the conclusion, body of the letter के बाद जो लास्ट लाइनिंग्स होती हैं, जैसे सेकंड पैराग्राफ फॉलो किया, थर्ड पैराग्राफ तक आए. थर्ड पैराग्राफ में अगर बहुत लंबा लेटर हुआ तो थर्ड पैराग्राफ तक आने की नौबत आएगी. अदरवाइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ वेयर यू बिगिन द लेटर एंड इन द सेकंड पैराग्राफ आफ्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द लेटर you would try to conclude it. That with this I come to the end of this letter and I hope to have a positive response from your side. So ये सारा कुछ लिखने के बाद लास्ट 1 or 2 sentences में you should try to conclude the letter and then you should write it. Closing of the letter. Closing of the letter, as you can see in the slide, is nothing else but the also known as the complimentary clause. Complimentary clause जहां पे आप लेटर को एंड करते हैं, आफ्टर एंडिंग, आफ्टर कंक्लूडिंग, जो आप कंक्लूजन में कंक्लूड करने के बाद जो आप लिखते हैं, जैसे कि very yours sincerely, yours cordially, with regards, with respect, इस तरीके से करके, या yours faithfully, जब आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, विच मीन्स नाउ योर लेटर हैज एंडेड. After the conclusion, if you are writing, the purpose of writing the complimentary clause is that you are being courteous and also it gives a hint to the reader that the letter is now complete and nothing else is left in the letter. And जो body होता है उसके just
2 लाइन स्पेसेस के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, किस तरह का पर्सन उसे आप लिख सकते हैं। योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स कॉर्डियली, विथ रिगार्ड्स, विथ ऐसे करके आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को कर सकते हैं। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, what comes is the name of the person who is writing the letter, followed by the designation and the signature of the person. तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख कर रहे हैं, उसके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस रख देना चाहिए। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा स्पेस करके फिर जो है हमें क्या करना है, we have to write the name followed by the designation, and if you want to give some contact number there itself you can give the contact number also. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, जहाँ पे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और जो नाम है उसके बीच में जो स्पेसिंग दे रहे हैं, इट इज अबाउट 4 लाइन स्पेसिंग। वो स्पेसिंग इसलिए दे रहे हैं, नाम और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज स्पेसिंग है वो इसलिए दे रहे हैं कि so that the person can add this signature over there. अगर हाथ से सिग्नेचर करना है मैनुअली, if the signature is there then the person can sign, or if some digital signature is there and it is in the printed form, तो signature को वहां पे digital format भी। So the reason behind is कि जब हम complimentary close कर रहे हैं उसके बाद some space should be there so that the signature either it can be done manually or it can be added digitally over there. After the complimentary clause, what is written? The name of the person who is writing the letter, followed by his designation, the name of his organization, and if he wants to give some phone number or contact number, that is also given. ठीक है, तो ये फॉर्मेट क्या है? दिस फॉर्मेट इज मोस्टली फॉलोड फॉर द फॉर्मल लेटर्स। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द फॉर्मल लेटर्स, either it is hand written format or it is in the printed format, इसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें कि एवरीथिंग इज रिटन इन दी लेफ्ट हैंड साइड और द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेपर डायरेक्टली, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डेट, उसके बाद फिर स्पेसिंग, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, फिर स्पेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, देन फॉलोड बाय द ग्रीटिंग और द सैल्यूटेशन, उसके बाद फिर स्पेसिंग है, फिर उसके बाद द मेन बॉडी ऑफ द लेटर और द कंटेंट ऑफ द लेटर, उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग दे करके फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी 4 लाइन की स्पेसिंग दे रहे हैं, उसके बाद नाम लिख रहे हैं, नाम के बाद जो है डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और फोन नंबर लिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नाम के बीच में जो स्पेस है वहां पे मैनुअली सिग्नेचर कर सकते हैं, या इफ इट इज इन द टाइप्ड फॉर्मेट, डिजिटल सिग्नेचर कैन ऑल्सो बी एडेड। तो ये फॉर्मेट क्या है, मोस्टली हम लोग फॉर्मल लेटर्स के लिए फॉलो करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लो। नो मैम, ये तो क्लियर हो गया। मैम ईमेल का मैम कुछ कंपोनेंट्स सब बता दें। ईमेल के क्या कंपोनेंट्स पूछने हैं? ईमेल में तो ईमेल का जो फॉर्मेट है, ईमेल का फॉर्मेट क्या है? हाँ, कुछ कंपोनेंट्स जैसे याद होगा कि 2 वाला जो फॉर्मेट, मतलब जब तुम ईमेल अगर तुमको करना है, व्हेन एवर यू हैव टू डू एन ईमेल, व्हाट यू वुड डू, यू वुड गो फॉर दी, you would open your email ID and you would go for the compose, जहां पे compose is nothing else but where you have to frame your email. So as soon as you go and click the compose button, and email एक फॉर्मेट जो है वो ईमेल का खुल जाएगा, जिसमें कि क्या है, 2 होगा, फिर BCC होगा, फिर CC होगा, यही फॉर्मेट ओपन होगा। 2 इज दी, हाँ, 2 में क्या करना है, जहां पे जिसको भी आपको वो मेल करना है उसका मेल आईडी या मेल एड्रेस आप 2 में ले जाकर के पेस्ट कर देंगे, मतलब 2 में ले जाकर टाइप कर देंगे। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी है, देन इफ यू राइट द लेटर्स ऑफ द नेम itself, it would give you several options and then you can choose from them. If it is for the first time you are writing the email ID of the person, it is not mentioned in your contact list, तो आपको पूरा का पूरा email ID फर्स्ट टाइम में contact
वाले उसमें लिखना पड़ेगा, फिर वो सेव हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहां पे क्या है, जो जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं इन दी टू लिस्ट, उसका ईमेल आईडी आप लिख देंगे। देन सीसी वुड बी टू द पर्सन जिनको कि आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बट यू वांट दैट दीज पीपल शुड आल्सो बी अवेयर दैट दिस मेल हैज ऑलरेडी बीन सेंट। तो उनका एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, सीसी में ऐड कर सकते हैं। सीसी इज नथिंग एल्स बट नोन एज द कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मीन्स नाउ दिस पर्सन वुड बी अवेयर दैट दिस मेल हैज बीन सेंट टू दिस पर्सन विथ अ रेफरेंस टू मी। तो सीसी में उन लोगों को करते हैं जिनको कि हम बताना चाहते हैं कि ये मेल किया गया है, और इसमें सीसी इसलिए है सो दैट यू कैन ऑल्सो बी इन रेफरेंस एंड यू कैन ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस मेल हैज बीन सेंट। ठीक है। फिर बीसीसी होता है जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे लोगों का ईमेल एड्रेस जिनको कि जिनके बारे में आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, है ना। हेलो, अंकित सुनाई दे रहा है? मैम थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है आवाज? यस मैम, आपकी हाँ हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इनका ईमेल एड्रेस आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, या फिर औरों को नहीं पता चलने देना चाहते हैं कि दिस मेल हैज बीन सेंट टू दिस पर्सन। यू वांट टू हाइड दैट दिस, जैसे होता है ना कि अपने दोस्तों में ही दो लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। मान लो सपोज यू वांट टू टेल 3 पर्सन्स इन अ ग्रुप, यू वांट टू टेल समथिंग टू 3 पर्सन्स इन योर ग्रुप। तो क्या है, बट आप ये चाहते हैं कि जो तीसरे को पता चले वो पहले दोनों, जो तीसरे को हम बता रहे हैं वो ये पहले 2 पर्सन जो है वो ये ना जान पाए कि तीसरे को भी पता है। ठीक है। तो व्हाट यू वुड डू इज द बेस्ट थिंग ऑफ हाइडिंग फ्रॉम दीज फर्स्ट 2 persons, number 1 person and number 2 person, is that you would write the name of the third person in the BCC. So now he would be aware that this mail has been sent to these first and the second person also, but जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन उनको नहीं पता होगा कि तीसरे को भी ये मेल गया था। सो इट वुड बी एग्जैक्टली कि आप तीसरे पर्सन को पता है कि हाँ किसको किसको मेल गया है, बट जो बाकी लोग हैं उनको नहीं पता चलेगा कि ये थर्ड पर्सन के पास भी ये मेल गया था। So this is the concept of the writing email ID in the BCC. और उसके बाद क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। जो सब्जेक्ट इज द सेम वेयर यू वुड राइट इन either 1 or maximum 2 sentences about the main content of the or your motive or your idea behind writing that email or writing that letter. और उसी के बाद क्या है, आपका जो आता है मेन बॉडी आता है, जिसमें कि आप स्टार्ट करते हैं इन दी बॉडी, जहां पे आप स्टार्टिंग करते हैं विद दी ग्रीटिंग्स दैट डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, फॉलोड बाय द मेन कंटेंट जो कि बोलते हैं बॉडी ऑफ द ईमेल, जहां पे आप मेनली पूरा डिस्क्राइब करते हैं इन 1, 2 एंड मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स। उसके बाद आप जो क्लोज करते हैं, जहां पे आप जो विथ रिगार्ड्स, विथ योर्स फेथफुली, इस तरीके से करके एड्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सेम टर्मिनोलॉजी जो यहाँ थी वहां भी है इन द ईमेल ऑल्सो, इट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फॉलोड बाय उसके बाद आप अपना क्या करते हैं, योर नेम, योर डेजिग्नेशन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन, एंड उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो नीचे में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में इफ यू आर हैविंग दैट योर सिग्नेचर, यू कैन ऑल्सो एड योर सिग्नेचर इन द डिजिटल फॉर्मेट ओवर देयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ईमेल में भी वही सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि लेटर में है। यस मैम, है ना, उसमें भी वही है कि ईमेल एड्रेस आप लिखते हैं। एड्रेस जो कि यहाँ लेटर में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां पे यू आर जस्ट राइटिंग, सिंस इट इज एन ईमेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सो यू आर जस्ट मेंशनिंग द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन, और आपकी ईमेल आईडी जो है या आपका एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो वहां पे उसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, जिसको बस भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है वो भी सेम टर्मिनोलॉजी, दोनों जगह सब्जेक्ट वही है। उसके अलावा जो है डेट बाय डिफॉल्ट क्योंकि चला जाता है, इसलिए वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपकी ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन टर्मिनोलॉजी इन लेटर इज ऑल्सो देयर, सैल्यूटेशन लेटर में भी यूज करते हैं, वहां भी यूज कर रहे हैं।
फिर बॉडी, या बॉडी ऑफ द लेटर या बॉडी ऑफ द ईमेल, या दोनों जगह सेम है, फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो कि दोनों जगह है, और उसके बाद देन इट इज द नेम, डेजिग्नेशन, एंड एट द लास्ट इफ सिग्नेचर यू वांट टू डू सिग्नेचर यू कैन डू इट। तो दोनों का दोनों फॉर्मेट जो है वो सेम है। ये समझ में आ गया? तो इनफॉर्मल लेटर्स डिस्कस करें आप। यस तो इनफॉर्मल लेटर्स में तो एज सच कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो करना होता है। जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड फॉर्मेट इज मोस्टली नाउ अ डेज व्हाट वी यूज इज द लेफ्ट हैंड फॉर्मेट और द लेफ्ट मार्जिन फॉर्मेट, जो कि जरूरी नहीं है कि आप इनफॉर्मल लेटर्स में फॉलो करें। आइदर यू कैन फॉलो द लेफ्ट हैंड फॉर्मेट ऑल्सो, या फिर आप अपना चाहे तो मिक्स करके भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप एड्रेस चाहे तो राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर भी लिख सकते हैं, डेट उधर मेंशन कर सकते हैं, और फिर बाकी सारी चीजें जैसे कि ग्रीटिंग्स वगैरह लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पहले हम लोग सीखते आए थे स्कूल में, वैसे लिख सकते हैं। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है फॉर द इनफॉर्मल लेटर्स, मिक्स एंड मैच करके आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली इनफॉर्मल लेटर्स, the terminology here for the informal letters, informal in the sense because the tone that is we are using for writing these letters, it is very personal tone, and it is not having any formality, not having any formal sense. So it is mostly friendly tone. It is written in a personal tone. That is why the name informal letters is given. मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को इस तरह की लेटर्स लिखते हैं, एंड द लैंग्वेज इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड इज वेरी कैजुअल लैंग्वेज एंड वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज। नाउ फॉर्मेट क्या है कि फॉर्मेट इज नथिंग एल्स, द सेम फॉर्मेट व्हिच वी फॉलोड इन द फॉर्मल लेटर, सेम फॉर्मेट को भी इसमें चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें इतना ज्यादा टू द पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। Since the tone would be very personal, very casual, you can talk about anything in this type of letters. वहां पे क्या था, in the formal letters you have to be to the point, you have to stick to the point, you have to share your idea in very limited words. तो वहां पे हम 2 to 3 paragraphs, we were talking 2 to 3 paragraphs are maximum. You have to be stick to your point and don't try to differ from your point. But in the case of the informal letters it is totally opposite. आप क्या कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना डिस्क्राइब कर सकते हैं, पैटर्न भी आपका क्या होगा, टोन भी आपकी फ्रेंडली टोन होगी, आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसलिए, तो जो भी पैटर्न चाहे वो पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। इट कैन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, इट कैन बी एनी फॉर्मेट। मैंने एक छोटा सा एक जनरल फॉर्मेट जो है वो बताया है यहाँ पे क्या है, जो अभी मैं बोल रही थी, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में, और तो मिक्स एंड मैच वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने एरो से दिखाने की कोशिश की है कि एड्रेस एंड द डेट कैन बी रिटन एट द राइट हैंड साइड, देन what you can, your starting can be, your greetings can be at the left hand side, followed by the main letter, followed by the main body of the letter, and again after this, again at the right hand side also you can write the complimentary clause followed by your name. So in this you can use the format of mix and match also, or you can write all the things in the left hand side of the पेपर ऑल्सो। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा जा सकता है, जो कि हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है वो भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मिक्स एंड मैच कि राइट हैंड साइड ऑल्सो यू कैन राइट द एड्रेस एंड द डेट, एंड the other content you can write in the left hand side of the paper, and then again complimentary clause can be written at the right hand side of the paper. सिमिलरली जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस है तो एड्रेस it can be written at the either at the left hand side of the page, or it can also be written at the right hand side of the page. In this case also address should be accurate. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे friends को या relatives को भेज रहे हैं तो address नहीं लिखेंगे, because letter should be delivered at the appropriate address. So in the case of informal letters also, what we have to keep in mind is that if we are writing it to the close friends or relatives also, but then also what we have to see that the address should be correct
followed by the name of the city and along with the pin code or the zip code, and since followed by the pin code and the zip code. And if you're writing the letters to any other country, any foreign countries, then or any other state also, then you have to mention the name of the state or mention the name of the other country. Ma'am, what is zip code? जिप कोड नथिंग एल्स बट पिन कोड. पिन कोड को हम लोग जिप कोड भी बोलते हैं. जैसे हर एरिया का एक 6 डिजिट का कोड होता है. यस मैम, पिन कोड. हाँ, उसी पिन कोड को हम लोग जिप कोड भी बोलते हैं. ठीक है. ओके. उसके बाद जैसे उसमें डेट लिखते थे उसी तरीके से इसमें भी डेट लिखेंगे. फॉर्मेट इज सेम. आफ्टर द एड्रेस वी वुड राइट द डेट. डेट लिखने के पीछे जो पहले भी बताया कि फॉर्मल लेटर्स में भी डेट मेंशन करने के पीछे और इनफॉर्मल लेटर्स के पीछे भी जो मोटिव बिहाइंड मेंशनिंग द डेट इज टू हैव अ रेफरेंस व्हेन वाज द लेटर रिटन. किस डेट में वो लेटर लिखा गया था, ताकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जैसे कि ये वाला लेटर पहले आया था या दूसरा वाला लेटर पहले आया था. सो डेट कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन द केसेस वेयर यू हैव टू सी और कीप अ ट्रैक ऑफ द लेटर. तो ट्रैक करने के लिए कि कौन सा लेटर पहले आया, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज इजिली वी कैन डू द ट्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ द डेट दैट इज मेंशन्ड इन द लेटर. उसमें जैसे था इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स में जैसे था कि वी वर स्टार्टिंग विद द वर्ड्स सच एज डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और डियर मिस्टर XYZ, डियर मिसेस XYZ. उसके हिसाब से वो टोन क्या थी, फॉर्मल टोन थी. बट इन द इनफॉर्मल लेटर्स ग्रीटिंग्स वुड बी लाइक दैट ओनली. बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोन वुड बी इनफॉर्मल. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डियर एंड द नेम ऑफ द पर्सन, डियर, और इस तरीके से कर सकते हैं. तो रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ये लिख रहे हैं तो डायरेक्टली वी कैन directly what we can do is the greeting would be most appropriate would be like starting with the term dear, and you can directly mention the name of the person. तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है या जो मेन बॉडी है, उसमें जहां पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सिंस इट इज इनफॉर्मल लेटर, तो आप क्या कर सकते हैं, मोस्टली इन द इनफॉर्मल लेटर्स जो हम लोग करते हैं, ये दैट यू स्टार्ट द लेटर बाय आस्किंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन. that what is about your health, I suppose that you are very well, और इतने दिन से तुमसे बात नहीं हो पाई, क्या चल रहा है, what is happening in your life. So the introduction paragraph is very friendly in the case of informal letter, where mostly is that I wish you happy new year या कुछ और ग्रीटिंग्स के साथ इस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, वेयर द टोन इज वेरी इनफॉर्मल. और हमेशा ज्यादातर पूछते हैं कि आई सपोज दैट यू आर इन गुड हेल्थ, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, आई हैव नॉट टॉक्ड यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई होप योर स्टडीज आर आल्सो गोइंग वेल, माय वेकेशंस वर लाइक दिस. तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ स्टार्ट हाँ इसी तरीके से स्टार्ट होता है. ओपनिंग जो है वो बहुत ही कैजुअल और कंफर्टिंग होती है, ताकि अगला जो जब वो स्टार्ट करे पढ़ना तो उसको लगे कि बहुत क्लोजली या बहुत अच्छे से ये लेटर लिखा गया, एंड द पर्सन इज सो क्लोज टू मी एज इट इज सच अ गुड लेटर टू मी. उसके बाद जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, जो कि जिसमें कि आप अपना बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज, योर देन योर वेकेशंस, आगे का क्या प्लान्स हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या कर रहे हैं अभी, या फिर उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे से भी पूछ सकते हैं व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग, और बहुत सारी बातें जो आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं वो भी चाहे तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द लेटर, जहां पे आप अपनी पर्सनल बातें जो हैं में डिस्कस कर सकते हैं. तो इनफॉर्मल लेटर्स आर मोस्टली वेरी पर्सनल लेटर्स, वेयर आप जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीटिंग्स करने के बाद, थोड़ा सा हाय हेलो करने के बाद, आजकल तो क्या ट्रेंड हो गया है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम सेइंग डियर आकाश या डियर कुछ नाम लेने के बजाय हाय हेलो या इस तरीके से करके
भी आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं लेटर। तो दिस इज ऑल्सो कि ये गलत नहीं है। अगर हाय हेलो भी कोई स्टार्टिंग में लिखता है, हेलो हाउ आर यू, या हाय होप यू आर वेल, अगर ऐसे भी कोई बिगिन करता है तो दिस इज ऑल्सो अ स्टाइल ऑफ द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। डियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाय से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज नॉट कि आपको इसी पे कन्फाइंड रहना है कि सिर्फ डियर ही लिखना है। हाय हेलो जो भी आपको समझ में आए वो स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ओके। बट इफ यू आर राइटिंग, जो कि लास्ट में लिखा है स्लाइड में कि बट इफ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव, जैसे कोई आपसे बहुत बड़े हैं, एज डिफरेंस इज देयर, उस तरीके से उतना वो नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें जो वर्डिंग्स आप चूज कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड यू शुड कंसिडर द एज ऑफ द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू एन एल्डरली पर्सन। उसके बाद सेम फॉर्मेट है कि यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं और गुड बाय करते हैं कि आई थिंक नाउ आई एम स्टॉपिंग माई लेटर ओवर हियर एंड आई विल बी राइटिंग मोर लेटर्स टू यू एंड आई होप दैट दिस थिंग्स आर गोइंग वेल इन योर लाइफ। इस तरीके से करके आप अपना लेटर जो है वो कंक्लूड करते हैं और इसी तरीके से आप कन्वर्सेशन को मतलब ऐसे एंड करते हैं या कंक्लूड करते हैं विच शोज कि आप आगे भी अभी उनसे बात करते रहेंगे। तो कंक्लूजन शुड बी वेरी अफेक्शनेट इन द केस ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स, दैट होप कि आप और इसी तरह से सक्सीड करें, या मैनी कंग्रेचुलेशंस कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, इस तरीके से करके फिर आप, या फिर होप कि आपकी हेल्थ, अगर आप किसी एल्डरली से बात करें तो दैट आई होप दैट योर हेल्थ इज वेरी गुड, और या फिर और कोई है जिस कोई सक्सेसफुल हुआ तो आई होप कि आपकी जो सक्सेस है वो कंटिन्यू रहे। इस तरीके से करके क्या कर सकते हैं, आप अपने लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं और उसके बाद कंक्लूजन के बाद आप बहुत सारे उस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, यहाँ पे वर्डिंग्स टोटली चेंज हो जाती है, जिसमें कि आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड, या विथ लॉट्स ऑफ लव। ये सारी चीजें करके आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉर्मेट यू कैन फॉलो द सेम फॉर्मेट, द स्टाइल ऑफ राइटिंग और द स्टाइल ऑफ चूजिंग योर वर्ड्स changes in both the cases. In the formal, it is mostly the formal tone that you are using. You have to be more disciplined, more conservative with the choice of your words. You have to follow a standard format or a standard style. Whereas in the case of informal letters, it is that you can be very, you cannot be very disciplined, you can be very free, you can express your feelings, you can keep on writing the letters. बट इन द केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स क्या है कि बहुत ज्यादा ना लिख करके टू द पॉइंट स्टिक करना है। एंड इन द केस ऑफ इनफॉर्मल फ्रेंडली टोन होना चाहिए। फ्रेंडली टोन में आप लिखिए, चाहे तो टू द पॉइंट मत स्टिक कीजिए, स्टोरी टेलिंग टाइप का भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, जो फॉर्मेट आपको ठीक लगे वो आप इनफॉर्मल लेटर्स में फॉलो कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ बोथ द लेटर्स, द थिंग्स जो भी आते हैं, जो मेन जो कंपोनेंट्स है लेटर के, वो दोनों ही चीजों में वही है। जैसे कि एड्रेस दोनों में ही आएगा, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस वुड कम इन बोथ द केसेस, द डेट वुड कम इन बोथ द केसेस, फॉलोड बाय द सैल्यूटेशन जो कि दोनों में रहेगा। सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल में रहेगा, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी सैल्यूटेशन दोनों में रहेगा, उसमें बस टोन चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो बॉडी है वो दोनों में ही रहेगी, बॉडी ऑफ द लेटर वुड बी इन बोथ द केसेस, फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इट वुड बी इन बोथ द लेटर्स। उसके बाद नाम और सिग्नेचर जो है, नाम दोनों केसेस में रहेगा, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ फॉर्मल में आएगा, इनफॉर्मल में ये सब देने की जरूरत नहीं है। टोन जो है वो लेटर का इनफॉर्मल के केस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और चेंज हो जाता है। फॉर्मल में क्या रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फ्लो रहेगा, विथ मोर confidence you have to write, you have to be more passionate with your choice of words so that the other person is convinced. because formal letters हम mostly क्या करते हैं, जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंपनी को लिख रहे हैं या फिर
कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं या फिर कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, इन्हीं केसेस में हम लोग फॉर्मल लेटर्स यूज करते हैं। यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ लो। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, इसके बाद जो वाली जो स्लाइड है, when you will see it is a sample cover letter that I have discussed। ये जो है सैंपल कवर लेटर में जब तुम देखोगे तो फर्स्ट अभी जो तुम्हारे स्लाइड पे आ रहा होगा, सैंपल कवर लेटर इज नथिंग एल्स बट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जैसे आप अपना रेज्यूमे सेंड करते हैं कहीं, अपनी सीवी सेंड करते हैं एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो with the CV or with the resume, what you attach a letter along with that। सिर्फ CV देने से तो काम नहीं चलेगा, एक लेटर भी तो होना चाहिए जहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे सर आई एम अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, ये मेरे सर्टिफिकेशन है, और फर्दर रेफरेंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी माय CV। so that letter which you attach with your resume or with your CV when you are applying for a job, that type of letter is known as a cover letter और अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। उस टाइप के लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं या जॉब एप्लीकेशन लेटर बोलते हैं, जो कि हम अपनी सीवी के साथ या अपने रेज्यूमे के साथ अटैच करके कंपनी में भेजते हैं। सो व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज अ सिंपल फॉर्मेट या सिंपल एक सैंपल कवर लेटर है जो कि हम लोग भेज रहे हैं। ये क्या है, ये जो है ये पर्सन ने लिखा है, ये शोभित करके जो है, फर्स्ट एड्रेस इज, जो आप देख रहे हैं कि शोभित करके है कैंडिडेट, उसने लिखा है कंपनी में टू मिस्टर रोहन। ठीक है, तो हाँ रोहन वर्मा को लिखा है फॉर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। और आगे वाले जब हम मैं स्लाइड दिखाऊंगी तो उसमें मेन कंटेंट होगा। तो फर्स्टली ऑन दिस द सेम फॉर्मेट इज बीइंग फॉलोड। पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली इट इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे क्या एड्रेस लिखा हुआ है, followed by the date and followed by the address of the sender। मतलब followed by the receiver's address। so Rohan has written I'm sorry, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि रोहन ने जो है वो लिखा है शोभित को लेटर। ठीक है, तो मिस्टर रोहन हैज रिटन अ लेटर टू मिस्टर शोभित, जो कि हम पहले भी बोल रहे थे, पहले क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा और दूसरा जो आएगा वो आएगा द रिसीवर्स एड्रेस। सो on this slide what you can see is you can see the address of रोहन, जो एड्रेस रोहन ने लिखा है कि रोहन वर्मा 8 सुजाता सर्कल रांची झारखंड। ठीक है, फॉलोड बाय द कॉन्टैक्ट नंबर एंड द ईमेल आईडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो डेट है वो लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो शोभित है जो कि सेंडर है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, शोभित कुमार टाइम्स यूनियन ऐसा करके कोलकाता से लिखा हुआ। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट यू कैन सी इज इट इज द ठीक है, it is the greetings that he has given that dear Mr. Shobit, और उसके बाद the main content of the letter is there that I am writing to apply for the programmer की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, that I am having these key strengths, I am having these qualities, I have a degree, वो सारी चीजों को यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है उसने अपने बारे में, that is known as the body of the letter। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने अपना कंपनी का एड्रेस लिखा, फिर कंपनी का जो पर्सन है, कंपनी का पर्सन है उसका एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखी, फिर जो है वो उसके बाद उसने अपना मेन कंटेंट लिखा जिस इज दी बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर को लिखने के बाद क्या किया है उसने, फिर उसने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हैं दैट आई कैन बी रीच्ड एनी टाइम, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर दिया, क्लोज किया है विथ दी सिंसियरली और अपना नाम लिखा है। ठीक है, so it is just a further classes what you will do is you will also study in detail also कि क्या है। ठीक है, कैसा सैंपल लेटर्स, सैंपल कवर लेटर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट यू वुड फर्दर स्टडी इन द अपकमिंग सेमेस्टर ऑल्सो। उसमें भी डिटेल सिखाया जाएगा कि हाउ यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे, कैसे आइडिया है और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
और उसी हिसाब से आगे वाली क्लासेस में और इसको डिटेल में दिखाया जाएगा। नाउ एक असाइनमेंट है। हेलो, असाइनमेंट यही है मैम? हाँ ये असाइनमेंट है, ये नोट कर लो। इसका चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लो। ये जो है ये तुम लिख करके दे देना कि ये असाइनमेंट है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, राइट अ लेटर टू द रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन stating the problem of accumulation of garbage in your locality which is causing spread of many diseases. ठीक है, तो you have to write a letter to the Ranchi Municipal Corporation and the main subject of the letter is that it is the accumulation of garbage in your locality and anything you can describe in detail in the body of the letter. और उस तरीके से कंटेंट को करके either in one or mostly in maximum in 2 pages you can write and describe about this letter and you can give it as an assignment. You can submit it as an assignment. ठीक है, सबमिट किस में करेंगे? सबमिट मेल आईडी पे। ओके मैम। ठीक है मैम, मेल में आपको मेल कर देंगे। मेल में मतलब आपको टाइप करके ये करेंगे ना? हाँ हाँ मेल कर देना। ओके ठीक है, अभी टाइम है, फ्राइडे तक ही नहीं, चाहो तो तुम लेटेस्ट बाय सर ने दिया ना 12 तक का टाइम दिया है ना अभी असाइनमेंट के लिए। यस मैम। हाँ तो 12 तक, मेरा भी असाइनमेंट 12 तक दे सकते हो, तो यू आर हैविंग टाइम। ओके मैम। ठीक है, अब क्वेश्चंस अगर है कुछ तो वो पूछ लो। नो मैम, क्वेश्चंस तो कुछ। तो इन दैट केस फिर खत्म करते हैं सेशन। यस मैम। ठीक है, ओके मैम।